मोल कंसैप्ट जो है वो हमेशा ਉਹਦੇ ਚੋਂ 2 ਜਾਂ 3 क्वेश्चन हमेशा पूछे जाएंगे। तो मोल कंसैप्ट इज अ वेरी बेसिक कंसैप्ट। पहली गल तो ये बहुत ही ज़्यादा बेसिक कंसैप्ट है ਤੇ जिन्ना ज़्यादा बेसिक कंसैप्ट है उन्नी ही ज़्यादा ਇਹਦੇ ਚ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਗਲਤੀ ਕਰਦੇ ਆ। सो ਇਹਨੂੰ स्टेप बाय स्टेप स्टडी करांगे, बहुत आराम ਨਾਲ स्टडी करांगे, बिल्कुल भी ਇਹਦੇ ਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। क्वेश्चंस भी सॉल्व करांगे ਤੇ ਐਕਚੁਅਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੋਲ ਨੂੰ ਸਮਝਾਂਗੇ ਵੀ ਮੋਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ठीक है, सो लेट्स कंटिन्यू विद द मोल कंसेप्ट। मोल कंसेप्ट ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆਪਾਂ 9th ਕਲਾਸ ਤੋਂ ਪੜਨ ਲੱਗ ਜੰਨੇ ਆ, ਬਟ ਫਿਰ ਵੀ ਵੈਨ ਜਦੋਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸਟੱਡੀ ਕਰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਕੁਐਸਚਨ ਸੋਲਵ ਕਰਨ ਲੱਗਦੇ ਆ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਜਿਹੜੀ ਕਮੀ ਹੈ ਉਹ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੀ ਡਿਸਕਸ ਕਰਨਾ ਹੈ ਮੋਲ ਕਨਸੈਪਟ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟੱਡੀ ਕਰਾਂਗੇ। डिटेल ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟੱਡੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਇਸ ਵਰਡ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸਮਝਾਂਗੇ that what is the meaning of the mole actually। ਠੀਕ ਹੈ, ਮੋਲ ਦਾ ਐਕਚੁਅਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੀਨਿੰਗ ਕੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਜੋ ਮੋਲ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਜੀ, ਮੋਲ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਓਕੇ, ਲੈਟ ਮੀ wear the mic first। ਤਾਂ ਮੋਲ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮੋਲ ਵਰਡ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਹੀਪ। ਹੀਪ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸਾਰਾ ਢੇਰ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆਗੇ ਹੀਪ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਟੈਕਨੀਕਲ ਲੈਂਗੁਏਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਮੋਲ। ਗॉट इट। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਲਿਖਦੇ ਹਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਿ ਮੋਲ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸਾਰਾ ਢੇਰ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਉਹ ਢੇਰ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਨਾ ਹੈ ਐਂਡ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਆਲ ਅਬਾਊਟ ਦਾ ਮੋਲ ਕਨਸੈਪਟ। ਠੀਕ, ਤਾਂ ਇਸ ਪਹਿਲਾ ਵਰਡ ਦਾ ਆਪਾਂ ਮਤਲਬ ਸਮਝਣਾ ਹੈ ਕਿ ਐਕਚੁਅਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੋਲ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਢੇਰ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਐਕਚੁਅਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਢੇਰ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਮੰਨ ਲਓ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦੇ ਕਿ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ 1 ਲੱਖ ਟੌਫੀਜ਼ ਹੈ। ठीक है, 1 ਲੱਖ ਟੌਫੀਜ਼ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਤਾਂ ਇਟ ਇਜ਼ ਕੁਆਇਟ ਓਬਵੀਅਸ ਕਿ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ 1 ਲੱਖ ਟੌਫੀਜ਼ ਨੂੰ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਕੱਠਾ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਇਟ ਵਿਲ ਬਿਕਮ ਅ ਹੀਪ। ਉਹ ਇੱਕ ਹੀਪ ਬਣ ਜੂਗਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਇੱਕ ਢੇਰ ਬਣ ਜੂਗਾ। ਤਾਂ ਉਸੇ ਢੇਰ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆਗੇ, ਮੋਲ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਬਟ ਵੈਨ ਵੀ ਆਰ ਟਾਕਿੰਗ ਇਨ ਦ ਟਰਮਸ ਆਫ ਦ ਕੈਮਿਸਟਰੀ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਇੱਕ ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਢੇਰ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ 6.023 into 10 to power 23 ਪਾਰਟੀਕਲਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਪਾਰਟੀਕਲਸ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਢੇਰ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੇ ਨੰਬਰ ਆਫ ਪਾਰਟੀਕਲਸ, ਦਿਸ ਇਜ਼ ਦ 10 raised to power 23, 10 ਦੀ ਪਾਵਰ 23। ਇਟ ਇਜ਼ ਅ ਹਿਊਜ ਟਰਮ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਟਰਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇੰਨੇ ਪਾਰਟੀਕਲਸ ਨੂੰ ਇਕੱਠਿਆਂ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਉਹਦਾ ਕੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਇੱਕ ਢੇਰ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਸੇ ਢੇਰ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆਗੇ, 1 ਮੋਲ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ ਦ ਟੈਕਨੀਕਲ ਟਰਮ 1 ਮੋਲ ਕਿਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੁੰਦਾ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਇੰਨੇ ਪਾਰਟੀਕਲਸ ਦੇ ਬਰਾਬਰ। ਨਾਓ ਵਾਟ ਆਰ ਥੀਸ ਪਾਰਟੀਕਲਸ। ਇਹ ਪਾਰਟੀਕਲਸ ਐਕਚੁਅਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਕੀ, ਕਿੰਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਪਾਰਟੀਕਲਸ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਪਾਰਟੀਕਲਸ ਹੈ ਰਾਜੇ, ਥੀਸ ਕੈਨ ਬੀ ਐਟਮਸ, ਇਹ ਐਟਮਸ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ। ਥੀਸ ਕੈਨ ਬੀ ਮੋਲੀਕਿਊਲਸ, ਇਹ ਮੋਲੀਕਿਊਲਸ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ। ਐਂਡ ਥੀਸ ਕੈਨ ਬੀ ਆਇਨਸ, these can be electrons, neutrons, whatever it is। ਪਾਰਟੀਕਲ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਡੀਲ ਕਰਦੇ ਆ। ਐਟਮ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਮੋਲੀਕਿਊਲ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਆਇਨ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਐਨੀਥਿੰਗ। ਪਾਰਟੀਕਲ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ, ਐਨੀਥਿੰਗ। ਠੀਕ ਹੈ, ਨਾਓ ਪਾਰਟੀਕਲ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਆਹ ਟਰਮ ਹੈ 6.0, ਕੁਝ ਬੁੱਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵੈਲਿਊ ਨੂੰ 6.022 ਵੀ ਕੰਸੀਡਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਟ ਡਜ਼ਨਟ ਮੇਕ ਐਨੀ ਡਿਫਰੈਂਸ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਪੁਆਇੰਟ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਪਿੱਛੇ ਜਾ ਕੇ ਟਰਮ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਲਿਖੋ ਚਾਹੇ ਇਹ ਲਿਖੋ, ਆਨਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਆਊਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਟਰਮ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਚਾਹੇ ਤਾਂ ਆਹ ਟਰਮ ਹੈ ਚਾਹੇ ਆਹ ਟਰਮ ਹੈ, ਇਸ ਟਰਮ ਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਐਵੋਗੈਡਰੋਜ਼ ਨੰਬਰ। ਐਵੋਗੈਡਰੋਜ਼ ਨੰਬਰ ਐਂਡ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟਡ ਬਾਈ ਕੈਪੀਟਲ N ਦੇ ਪੈਰ 'ਚ A। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਨੋਨ ਐਜ਼ ਦਾ ਐਵੋਗੈਡਰੋਜ਼ ਨੰਬਰ। ਦਿਸ ਫਿਗਰ ਇਜ਼ ਆਲਵੇਜ਼ ਨੋਨ ਐਜ਼ ਐਵੋਗੈਡਰੋਜ਼ ਨੰਬਰ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਆਪਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਦਾ ਬਿਗਰ ਟਰਮ, ਇਹਨੂੰ ਹਰ ਵਾਰੀ ਇੰਨਾ ਲਿਖਣਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਔਖਾ ਹੁੰਦਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਰਿਪਲੇਸ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ, NA ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਪਲੇਸ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਨੈਕਸਟ ਆਉਂਦਾ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਇਹਦੇ ਮੋਲ ਦੇ ਇੱਕ ਕਨਸੈਪਟ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲਿਆ ਵੀ ਐਕਚੁਅਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੋਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਨਾਓ ਕਮਿੰਗ ਟੂ ਦਾ ਟੈਕਨੀਕਲ ਲੈਂਗੁਏਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਟੈਕਨੀਕਲ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਐਕਚੁਅਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੋਲ ਨੂੰ ਆਪਾਂ
किवें एक्सप्लेन करते हैं, ठीक है। सो दिस इज द बेसिक कॉन्सैप्ट ऑफ द मोल। लाइक हुण आपां इहनूं पढ़ना है मोल नूं, यानी कि अपना मेन परपस जिहड़ा हैगा वो यह है भी आपां क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन सॉल्व करन दे लई मोल दियां 3 डेफिनेशनस हुंदियां रजे। देयर आर 3 डेफिनेशनस ऑफ द मोल, ठीक। ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਫਰਸਟ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ, that is on the basis of the particles, number of particles, on the basis of number of particles. Again these particles can be atoms, molecules, ions, electrons, whatever it is, ठीक है। particles ਦਾ मतलब ਕੀ ਹੈ, ਕੁਝ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। second definition is on the basis of mass. The second definition is on the basis of the mass, clear? Third one is the on the basis of the volume, basis of volume, and this third definition is applicable only for the gases, only for the gases. ये सिर्फ ते सिर्फ gases ਦੇ case ਦੇ ਵਿੱਚ applicable ਹੁੰਦੀ ਹੈ, because we always consider the volume in case of gases. ਆਪਾਂ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਗੈਸ ਦਾ ਵੋਲਿਊਮ ਲੈਨੇ ਆ, ਸੋਲਿਡ ਤੇ ਲਿਕੁਇਡ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਮਾਸ ਜਾਂ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਨੰਬਰ ਆਫ ਪਾਰਟੀਕਲਸ ਨੂੰ ਕੰਸੀਡਰ ਕਰਕੇ ਚੱਲਾਂਗੇ, ਕਲੀਅਰ। ਵੋਲਿਊਮ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਆ, that is not an issue, ਬਟ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਪਾਰਟਿਕੂਲਰ ਥਰਡ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਗੈਸ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਾਂਗੇ, ਸੋਲਿਡ ਤੇ ਲਿਕੁਇਡ ਦਾ ਦੂਸਰੀ ਤੇ ਫਰਸਟ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਦੇ ਬੇਸ ਤੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਕਲੀਅਰ। ਨਾਓ ਕਮਿੰਗ ਬੈਕ ਟੂ ਦ ਫਰਸਟ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ, ਵਾਟ ਇਜ਼ ਦ मीनिंग on the basis of the number of particles की होया कि 1 mole is always is equals to 6.022 into 10 to power 23 particles. Now if I say 1 mole atoms किस चीज़ दे बराबर होणगे, 1 mole atoms दे विच किन्ने atoms होणगे, ਤਾਂ it will be 6.022 into 10 to power 23 atoms. Understood? Now again if I write 1 mole molecule, ਜੇ ਮੈਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲਿਖਾਂ 1 mole molecule ਕਾਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋਊਗਾ, ਤਾਂ it will be equal to 6.022 into 10 to power 23 molecules. ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਆਪਾਂ ਇਸ ਸਾਈਡ ਤੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, जिस चीज़ दे 1 मोल की गल हो रही है ਉਹਦੇ 'ਚ ਇੰਨੇ नंबर ऑफ ਉਹੀ चीज़ एग्जिस्ट करूगी। वी कैन नैवर से दैट कि 1 मोल मॉलिक्यूल ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੇ ਐਟਮ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਆਪਾਂ ਇਹ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ, दिस विल बी रॉन्ग, ठीक है। ਇਹ गलत डेफिनेशन है, ਜਿਹਦੀ ਗੱਲ ਆਪਾਂ ਲੈਫਟ हैंड साइड ਤੇ ਕਰਾਂਗੇ ਉਸੇ चीज़ की गल ਆਪਾਂ राइट हैंड साइड ਤੇ भी करांगे। अंडरस्टूड? सो इस चीज़ का बहुत खास ध्यान रखना है कि जे आपां नूं एटम ही दिता गया तो एटम ही पूछा गया तो आपां यह डायरैक्ट डेफिनेशन लगा सकते हैं, ठीक है। अदरवाइज इन केस जे आपां नूं दिता की है मॉलिक्यूल तो पूछया की है एटम, तो पहला आपां मॉलिक्यूल तो एटम दे विच कन्वर्ट करांगे, उस तो बाद आपां इस डेफिनेशन नूं अप्लाई करांगे। इज दिस क्लीयर? सो दिस इज द फर्स्ट डेफिनेशन। इहदे ते बेस्ड आपां एक क्वेश्चन करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन की है कि कैलकुलेट द नंबर ऑफ एटम्स, कैलकुलेट द नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन 3.2 मोल्स ऑफ सोडियम। सोडियम का सिंबल होता है Na, ठीक है, सोडियम। Now what is the meaning of this question? We have to calculate, आपा की कैलकुलेट करना है number of atoms, ठीक है, किदे विच 3.2 moles of sodium। हुण सब तो पहली चीज़ आपा की देखनी है कि सोडियम की है, सोडियम मॉलिक्यूल है, सोडियम एटम है, सोडियम आयन है, की चीज़ है, तो सोडियम इटसेल्फ इज ऑल्सो एन एटम। सोडियम आप भी की हैगा एटम है, ठीक है। तो ਇਹਦਾ मतलब ਜਿਹੜੀ चीज़ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੀ ਗਈ ਹੈ ਉਹੀ चीज़ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕੀ ਸੋਲਵ ਕਰਾਂਗੇ, 3.2 ਮੋਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਐਟਮਸ ਕੱਢਨੇ ਆ। ਵੀ ਨੋ ਦੈਟ कि 1 मोल ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਐਟਮਸ ਹੋਣਗੇ, 6.022 into 10 to power 23 यानी कि Na ਐਟਮਸ, Na ਐਟਮਸ। ਤਾਂ 3.2 मोल ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਐਟਮਸ ਹੋਣਗੇ, we have to multiply this with this,
3.2 इंटू Na, ਤਾਂ ਇੰਨੇ ਮੋਲੀਕਿਊਲ ਸੌਰੀ ਇੰਨੇ ਐਟਮਸ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੋਣਗੇ ਕਿੰਨੇ ਕਿਹਦੇ ਵਿੱਚ 3.2 ਮੋਲਸ ਆਫ ਸੋਡੀਅਮ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨ, ਦਿਸ ਇਜ਼ ਦਾ ਵੈਰੀ ਬੇਸਿਕ ਕੁਐਸਚਨ, ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਲੈਵਲ ਆ ਉਹ ਅਪ ਹੁੰਦਾ ਜਾਊਗਾ ਕੁਐਸਚਨਸ ਦਾ। ਸੋ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਦਾ ਫਰਸਟ ਲੈਵਲ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਈਜ਼ੀਐਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਊਗਾ। ਕਲੀਅਰ। ਨਾਓ ਸੈਕਿੰਡ ਕੁਐਸਚਨ ਕੀ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਦਾ, ਅਗਲਾ ਜੋ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ दैट इज, अगला क्वेश्चन यही है, कैलकुलेट द नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन 2 moles of carbon dioxide. Now second kind of question is calculate the number of atoms present in 2 moles of carbon dioxide. Now ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕੀ ਹੈ number of atoms, but ਦਿੱਤਾ ਕੀ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਾਰਬਨ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ। ਨਾਓ ਕਾਰਬਨ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ ਇਜ਼ ਨॉट ਐਨ ਐਟਮ, ਇਹ ਐਟਮ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਕਾਰਬਨ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ ਕੀ ਹੈ, ਮੋਲੀਕਿਊਲ ਹੈ। ਸੋ ਆਪਣਾ ਫਰਸਟ ਸਟੈਪ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਇਸ ਮੋਲੀਕਿਊਲ ਨੂੰ ਐਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਨਵਰਟ ਕਰਾਂਗੇ। ਐਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਨਵਰਟ ਕਰਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇਸ ਮੋਲੀਕਿਊਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਟਮ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰ ਲਾਂਗੇ ਵੀ ਕਿੰਨੇ ਹੈ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ 2 ਮੋਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। ਸੋ ਫਰਸਟ ਸਟੈਪ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਕਾਰਬਨ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਐਟਮਸ ਨੇ, ਇਟ ਕੰਟੇਨਸ 3 ਐਟਮਸ, 3 ਐਟਮਸ ਨੇ, ਇੱਕ ਕਾਰਬਨ ਦਾ ਤੇ 2 ਆਕਸੀਜਨ ਦੇ। ਸੋ ਇੱਕ ਮੋਲੀਕਿਊਲ ਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਐਟਮਸ ਨੇ। ਕਲੀਅਰ। ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਕੀ ਕਲੀਅਰ ਹੋਈ ਕਿ 1 ਮੋਲੀਕਿਊਲ is equals to 3 atoms. Now 1 mole molecule ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਐਟਮਸ, 3Na atoms, ਤੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿੰਨੇ ਚ ਹੈ 2 ਮੋਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤਾਂ 2 ਮੋਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ 3 into 2Na atoms, यानी कि 6Na atoms. सो दिस इज़ द अनदर काइंड ऑफ क्वेश्चन जो कि पेपर ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਅਪਰ ਲੈਵਲ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਿ ਦਿੱਤਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮੋਲੀਕਿਊਲ ਹੈ ਬਟ ਪੁੱਛਿਆ ਕੀ ਗਿਆ ਨੰਬਰ ਆਫ ਐਟਮਸ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸੋਲਵ ਕਰੋਗੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਮੋਲੀਕਿਊਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਟਮਸ ਨੂੰ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰਾਂਗੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਜਿੰਨੇ ਮੋਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਆ ਉਹਨੇ 'ਚ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਕਲੀਅਰ। ਸੋ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਦ ਸੈਕਿੰਡ ਕਾइंड ऑफ क्वेश्चन ਜਿਹੜਾ पेपर ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਆਉਂਦੇ ਰਾਜੇ ਅਗਲਾ ਇੱਕ क्वेश्चन जो है वो की चीज़ है, सेकेंड क्वेश्चन इज कि उल्टा पूछ लें, कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स। हुण थोनू नंबर ऑफ मोल्स पूछ ले इन 3.011 इंटू 10 to power 23 एटम्स ऑफ किसी का भी ले लो मैग्नीशियम। ठीक है जी। तो दिस इज़ द अनदर काइंड ऑफ क्वेश्चन, ये अपने को एक होर तरह का क्वेश्चन है। तो ये हुण आपां नूं दिता की होया एटम्स की गिनती दी हुई है एंड वी हैव टू कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स। आपां की फाइंड आउट करने हैं, नंबर ऑफ मोल्स नूं फाइंड आउट करना है। ठीक है। तो उल्टा दिता होया पता की करना नंबर ऑफ मोल्स। वी नो दैट एक मोल दे विच पार्टिकल्स किन्ने हुंदे आ 6.022 इंटू 10 to power 23। दैट मीनस जिहड़ी चीज़ दिती हुई है उन्होंने हमेशा लैफ्ट हैंड साइड ते रखो। तो 6.023 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟੀਕਲਸ ਕਿੰਨੇ ਸੌਰੀ ਮੋਲਸ ਕਿੰਨੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਐਟਮਸ is equals to 1 mole and we have given 3.011 into 10 to power 23 atoms। ਇਹਦੇ ਚ ਕਿੰਨੇ ਮੋਲ ਹੋਣਗੇ ਤਾਂ 1/6.022 into 10 to power 23 multiply 3.011 into 10 to power 23। ठीक है। तो ये ऑब्वियसली ਇਹਦਾ हाफ है तो 1/2 आ जाऊगा, तो आंसर विल बी 0.5 मोल्स। सो तीसरी तरह का क्वेश्चन यह पूछा जाऊगा। ठीक है। इस तो ज़्यादा टिपिकल क्वेश्चन हजे थोनों कुछ नहीं आऊगा जिन्ना चिर आप बाकी दी डेफिनेशनस नहीं कर लेंगे। सो फर्स्ट डेफिनेशन के बेस पे सिर्फ तो सिर्फ यही 3 तरह के क्वेश्चन बनते हैं। अंडरस्टूड रजे। नैक्सट आता अपने कोले अगला जो है दैट इज़ द सैकेंड डेफिनेशन। सैकेंड डेफिनेशन की कहती है, सैकेंड डेफिनेशन की चीज़ है उन्होंने स्टडी करते हैं।
सो दिस इज़ अ वेरी ईजी कॉन्सैप्ट, कुछ ये टिपिकल नहीं हैगा अगर आप एक टैक्नीक दे नाल चलांगे, ठीक है। तो जदों आप एक टैक्नीक दे नाल चलते हैं तो क्वेश्चन सॉल्व करन दे विच कोई दिक्कत नहीं आउंदी, ठीक है जी। चलो सैकेंड डेफिनेशन के उत्ते आने आ। सैकेंड डेफिनेशन जो है रजे दैट इज ऑन द बेसिस ऑफ द मास। अकॉर्डिंग टू दिस डेफिनेशन 1 मोल एटम दा जिहड़ा मास होगा, एक मोल एटम्स दा जो मास होगा दैट विल बी इक्वल्स टू ग्राम एटॉमिक मास। ग्राम एटॉमिक मास, ग्राम एटॉमिक मास नू शॉर्ट फॉर्म दे विच आपां GAM लिखते हैं, ठीक है। तुहानूं किते भी लिखिया होया मिल सकदा। तो 1 मोल एटम्स का जिहड़ा मास हुंदा है वो उहदे ग्राम एटॉमिक मास दे बराबर हुंदा है। नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द ग्राम एटॉमिक मास? इनू करते हैं 1 मोल मॉलिक्यूल कादे बराबर होगा? 1 मोल मॉलिक्यूल का मास जिहड़ा हैगा दैट विल बी इक्वल्स टू ग्राम मॉलिक्यूलर मास, ठीक है। जिन्हों की लिखते हैं GMM। सो दीज आर द टू टर्म्स जिन्हों आप सैकेंड डेफिनेशन दे विच यूज करना है। फर्स्ट इज द ग्राम एटॉमिक मास एंड सैकेंड इज द ग्राम मॉलिक्यूलर मास, ठीक है जी। तो ये हुण आपां की समझना की है कि ग्राम एटॉमिक मास की हुंदा है, ग्राम एटॉमिक मास ते ग्राम मॉलिक्यूलर मास की हुंदा है। किसी भी एटम का जिहड़ा एटॉमिक मास हुंदा है, किसी भी एटम का जो एटॉमिक मास आपां स्टडी करते हैं उस एटॉमिक मास नूं जे मैं ग्राम्स दे विच एक्सप्लेन करदा, उस एटॉमिक मास नूं जे आपां ग्राम्स दे विच एक्सप्लेन कर दिए तो उहनूं आपां की कहांगे दैट विल बी द ग्राम एटॉमिक मास, ठीक है जी। तो उहनूं की कहा जाता है ग्राम एटॉमिक मास। फॉर एग्जाम्पल सोडियम का जिहड़ा एटॉमिक मास हुंदा है दैट इज 23 AMU एटॉमिक मास यूनिट। बट जे मैं इस चीज़ नूं 23 ग्राम्स लिख दियां तो इट विल बी द ग्राम एटॉमिक मास ऑफ द सोडियम। क्लीयर? तो इहनूं की बन जूगा 23 ग्राम्स इज द ग्राम एटॉमिक मास ऑफ द सोडियम, ठीक है। किसी भी पीरियोडिक टेबल दे विच जिन्ने भी एलीमेंट एग्जिस्ट करते हैं देयर आर 118 एलीमेंट्स इन द पीरियोडिक टेबल। उन्हां दा सारियां दा जो भी मास हुंदा है, जो भी एटॉमिक मास हुंदा है वो सारा उन्हां दे 1 मोल का मास हुंदा है। यानी कि सोडियम दे 1 मोल का मास कितना होगा? 1 मोल ऑफ सोडियम इज इक्वल्स टू 23 ग्राम्स, ठीक है जी। तो 1 मोल सोडियम कादे बराबर होगा? हमेशा 23 ग्राम के बराबर होगा। सिमिलरली जे आप गल करिए हुण मॉलिक्यूलर मास की, या पहला एटॉमिक मास की एक होर करते हैं, एग्जाम्पल करते हैं। मैगनीशियम का जिहड़ा मास है वो 24 हुंदा है। तो जे आप मैगनीशियम के मास नूं 24 ग्राम्स लिख दिंदे आ तो यह मैगनीशियम के 1 मोल का मास होगा। तो जिन्ना भी पीरियोडिक टेबल दे विच आपां मास नूं स्टडी करते हैं, जिन्ना भी डिस्कस करते हैं वो हमेशा हरेक एलीमेंट के 1 मोल का मास हुंदा है। दिस इज नोन एज द ग्राम एटॉमिक मास अकॉर्डिंग टू द सैकेंड डेफिनेशन। नाउ कमिंग टू द ग्राम मॉलिक्यूलर मास। ग्राम मॉलिक्यूलर मास की हुंदा है? सिंपली इत्थे आप एटम की गल कर रहे सी, जदों आप मॉलिक्यूल की गल करांगे तो वो मॉलिक्यूलर मास जिहड़ा होगा वो 1 मोल का मास होगा। फॉर एग्जाम्पल आप सल्फ्यूरिक एसिड की गल करते हैं H2SO4। सल्फ्यूरिक एसिड का जिहड़ा टोटल मास है वो कितना होगा? हाइड्रोजन 1 का 1 ग्राम हुंदा है, 2 का 2 ग्राम हो गया, इहदा सल्फर का हुंदा है 32 ग्राम, ऑक्सीजन का हुंदा 1 का 16 ग्राम हुंदा है, मल्टीप्लाई बाय 4 क्योंकि 4 ने, तो 2 + 32 + 64 इट विल बी 98। तो जे मैं इहनूं 98 ग्राम लिख रही हाँ दैट मीनस यह 1 मोल सल्फ्यूरिक एसिड का मास है, ठीक है। तो दिस इज द ग्राम मॉलिक्यूलर मास ऑफ द सल्फ्यूरिक एसिड। क्लीयर? सो ग्राम एटॉमिक मास ते ग्राम मॉलिक्यूलर मास किस चीज़ को एक्सप्लेन करते हैं? यह उन्होंने 1 मोल का मास हुंदा है। जदों भी आप एटॉमिक मास नूं या मॉलिक्यूलर मास नूं ग्राम्स दे विच एक्सप्लेन करते हैं तो वह उन्होंने ग्राम एटॉमिक मास ते ग्राम मॉलिक्यूलर मास बन जाते हैं जिहड़े कि उन्होंने 1 मोल का मास हुंदे है, ठीक है जी। सो इनू आप एक सिनॉप्सिस करते हैं इहदा। सैकेंड डेफिनेशन के अकॉर्डिंग जिहड़ी चीज़ सी 1 मोल का मास हमेशा एटॉमिक मास ते मॉलिक्यूलर मास के बराबर होगा, ठीक है। सो ये ते हुण आपां एक क्वेश्चन करते हैं जिहदे तो क्लैरिटी ज़्यादा होगी।
ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਤੇ ਕੁਐਸਚਨ ਬਿਲਕੁਲ ਡਿਟੋ, ਕੋਈ ਡਿਫਰੈਂਸ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਸ ਉਹਦੇ ਚ ਨੰਬਰ ਆਫ ਪਾਰਟੀਕਲਸ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਇਹਦੇ ਚ ਮਾਸ ਦਿੱਤਾ ਜਾਊਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਚ ਕੀ ਆਊਗਾ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੈਲਕੂਲੇਟ the number of moles present in 88 ग्राम of carbon dioxide। ठीक है जी। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕੱਢਣਾ ਹੈ, ਨੰਬਰ ਆਫ ਮੋਲਸ ਕੱਢਨੇ ਹੈ ਕਿਹਦੇ ਵਿੱਚ, 88 ਗ੍ਰਾਮ ਆਫ ਕਾਰਬਨ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ। 88 ਗ੍ਰਾਮ ਕਾਰਬਨ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਮੋਲਸ ਹੋਣਗੇ ਉਹ ਆਪਾਂ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਨਾਓ ਹੁਣ ਕਾਰਬਨ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ ਕੀ ਹੈ, ਇਟ ਇਜ਼ ਅ ਮੋਲੀਕਿਊਲ, ਦੈਟ ਮੀਨਸ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਦਾ ਕੀ ਕੱਢਾਂਗੇ, ਮੋਲੀਕੂਲਰ ਮਾਸ ਕੱਢਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਮੋਲੀਕੂਲਰ ਮਾਸ ਹੋਊਗਾ, ਕਾਰਬਨ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਰਾਜੇ 12 ਗ੍ਰਾਮ प्लस एक ऑक्सीजन का 16, तो 2 का कितना हो जाऊगा 32, दैट मीनस 44 ग्राम जो है वो ਇਹਦਾ ਮੋਲੀਕੂਲਰ ਮਾਸ है। तो एक मोल का मास कितना आ गया 44 ग्राम, यानी कि 88 ग्राम ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਹੋਣਗੇ 2 मोल्स। तो 88 ग्राम्स ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਹੋਣਗੇ 2 मोल्स। तो 2 मोल इज द आंसर। सो दिस इज द अनदर काइंड ऑफ क्वेश्चन ਜਿਹੜਾ कि सैकेंड डेफिनेशन ਦੇ ਉੱਤੇ बेस्ड है। ठीक है राजे। तो इसे तरीके नाल ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਇੱਕ प्रॉब्लम की आ सकती है कि ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ एटॉमिक मासेस नहीं याद। ठीक। तो सब तो पहला काम जदों भी मोल कंसैप्ट करना है तो सब तो पहला काम की है कि 1 to 20 एलीमेंट्स जिहड़े हैगे आ 1 to 20 एलीमेंट्स उन्हां दे एटॉमिक मासेस नूं याद करना है, एटॉमिक नंबर ते उन्हां दे जिहड़े मास नंबर है उन्हां नूं आपां याद करांगे। ठीक है जी। तो यह आप एक वीडियो इहदा भी बनावांगे कि जिहड़ा एलीमेंट्स का मास है वो किद्दां हुंदा है या किवें याद करीदा है, या इहदे ते आपां एक चार्ट बनावांगे ताकि बहुत ईजीली जिहड़ा हैगा वो याद हो सके। ठीक है जी। सो सैकेंड डेफिनेशन के बेस ते जिहड़ा अगला क्वेश्चन है वो किवें पुट किया जा सकता है। हुण अपने कोले क्वेश्चन जिहड़ा हैगा ना वो पहली ते दूसरी डेफिनेशन नूं मिक्स करके आ सकता है। फस्ट एंड सैकेंड डेफिनेशन का मिक्सचर हुंदा है, उदों क्वेश्चन नूं किवें अटैम्प्ट करना है जिहड़ा कि मास्टर केडर के पेपर दे विच पुछया जाऊगा। इन्ना क लैवल पेपर का हुंदा है कि तुहानूं थोड़ा जा अपर लैवल का क्वेश्चन आवे। ठीक है। तो हुण आपां एक क्वेश्चन नूं अटैम्प्ट करना है, टिपिकल उहदे च भी कुछ नहीं है क्योंकि आपां नूं एक टैक्नीक आउंदी है। तो मान लो तुहाडे कोले क्वेश्चन ही आउंदा है, कैलकुलेट द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट इन 49 ग्राम्स ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। हुण आपां नूं क्वेश्चन च की दिता होया मास ते पुछया की गया नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, यानी कि दिस इज द मिक्सचर ऑफ फर्स्ट एंड सैकेंड डेफिनेशन। यह जिहड़ा कॉन्सैप्ट है, यह जिहड़ा क्वेश्चन है, ये पहली ते दूसरी डेफिनेशन का मिक्सचर आ गया। ठीक है। हुण इदां दे क्वेश्चनस नूं आपां किवें सॉल्व करना है, किस तरीके नाल सॉल्व होऊगा, जदों भी दो डेफिनेशनस का मिक्सचर करके क्वेश्चन नूं पुछया जाता है तो उन्हां दे विच सब तो कॉमन चीज़ जिहड़ी हुंदी है वो हुंदी है राजे मोल, नंबर ऑफ मोल्स। तो जदों भी तुहाडे कोले दो डेफिनेशनस का मिक्स होकर क्वेश्चन आउंदा है तो सब तो पहला काम की है नंबर ऑफ मोल्स नूं फाइंड आउट कर लो, जिहड़ा भी डाटा गिवन है ਉਹਦੇ ਚੋਂ, चाहे वो फर्स्ट डेफिनेशन का गिवन है चाहे वो सैकेंड डेफिनेशन का गिवन है, क्योंकि उत्थे तक आप सिर्फ इक्को ही डेफिनेशन लानी है। ठीक। तो सब तो पहला काम की हुंदा है कि यू हैव टू फाइंड आउट द नंबर ऑफ मोल्स। नंबर ऑफ मोल्स नूं आपां फाइंड आउट करांगे। हुण देखो क्वेश्चन की दिता होया है 49 ग्राम दे विच किन्ने नंबर ऑफ मोल्स आपां कढ सकदे हां। आपां नूं पता है कि जिहड़ा सल्फ्यूरिक एसिड है इहदा मॉलिक्यूलर मास हुंदा है 98 ग्राम, यानी कि 98 ग्राम दे विच किन्ने मोल्स हुंदे है 1 मोल, ते 49 ग्राम दे विच किन्ने मोल्स आ जाणगे हाफ मोल। अद्धा ही है ना, जे मास अद्धा रह गया तो मोल भी अद्धा रह जाऊगा। तो हुण अपने कोले मोल्स किन्ने आ गए 0.5, यानी कि हाफ मोल आ गया। तो हुण आपां हाफ मोल दे विच नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स नहीं फाइंड आउट कर सकते, बिल्कुल कर सकते हैं। एक मोल दे विच किन्ने पार्टिकल्स हुंदे हैं, किन्ने मॉलिक्यूल्स होणगे Na, ते हाफ दे विच किन्ने होणगे Na/2, ये भी हाफ हो जाएंगे, यानी कि या तो Na/2 की ऑप्शन होगी या फिर ऑप्शन होगी 3.011 × 10⁻23 मॉलिक्यूल्स।
क्लीयर। सो जदों भी अपने कोले दो डेफिनेशंस का मिक्सचर आउंदा है तो दोनों डेफिनेशंस के मिक्सचर दे विच एक चीज़ हमेशा कॉमन हुंदी है, दैट इज़ द नंबर ऑफ मोल्स। तो आपां नंबर ऑफ मोल्स नूं सब तो पहला फाइंड आउट करांगे। जो भी डाटा आपां नूं गिवन है, चाहे वो फर्स्ट डेफिनेशन का गिवन है, चाहे वो सैकेंड डेफिनेशन का गिवन है, ठीक है, तो उहदे तो आपां की फाइंड आउट कर लांगे, नंबर ऑफ मोल्स नूं फाइंड आउट कर लांगे। तो इत्थों आपां 49 ग्राम्स दे विच मोल्स कढ ले, किन्ने आ गए, दैट विल बी हाफ मोल। तो हाफ मोल दे विच हुण आपां जो चीज़ पूछी है उहनूं फाइंड आउट कर लो, दैट मीनस एक मोल दे विच मॉलिक्यूल्स किन्ने होणगे, Na, ते हाफ मोल दे विच किन्ने होणगे, Na/2। सो दिस इज़ द अनदर काइंड ऑफ विच इज़ द अपर लैवल क्वेश्चन जिहड़ा कि पेपर दे विच पुछया जा सकदा है। एग्जैक्ट इदां दे क्वेश्चन तुहानूं पेपर दे विच पुछे जांदे हैं, ठीक है राजे। नाउ हुण अपने कोले एक टैक्नीक होर है, सौखा तरीका, जदों आपां कॉन्सैप्ट समझ लिया तो आपां एक सौखा तरीका जिहड़ा हैगा वो करांगे कि नंबर ऑफ मोल्स कड्ढण दा फार्मूला की हुंदा है। जे आपां फर्स्ट डेफिनेशन दे बेस ते देखिए, फर्स्ट डेफिनेशन दे बेस दे उत्ते देखिए तो नंबर ऑफ मोल्स इज ऑलवेज इज इक्वल्स टू given number of particles, given number of particle over Avogadro's number। क्लीयर। तो यह अपने कोले एक फॉर्मूला हुंदा है जिहदे विच आपां नूं बहुती कैलकुलेशन करन दी लोड़ नहीं पैंदी कि नंबर ऑफ मोल्स कादे बराबर होणगे, गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल्स ओवर एवोगैड्रोस नंबर। तो जे तुहानूं नंबर ऑफ मोल्स दिता है तो तुसीं गिवन पार्टिकल कढ सकदे हो या जो भी पुछया होया, ठीक है। तो जे तुहानूं अपने कोले गिवन पार्टिकल्स दिते हैं तो तुसी नंबर ऑफ मोल्स कढ सकते हो, ठीक है। तो ये अपने कोले एक फॉर्मूला हो गया ऑन द बेसिस ऑफ द फर्स्ट डेफिनेशन। सैकेंड डेफिनेशन दे बेस ते नंबर ऑफ मोल्स हमेशा कादे बराबर होणगे, गिवन मास ओवर ग्राम एटॉमिक मास और ग्राम मॉलिक्यूलर मास। तो ये चो भी आपां जे नंबर ऑफ मोल्स पता ने तो मास कढ सकते हैं, जे मास दिता होया तो नंबर ऑफ मोल्स कढ सकते हैं। सो दिस इज़ द ईजीयर मैथड, बट ये पहला क्यों नहीं करना चाहिए, क्योंकि फर्स्टली वी हैव टू अंडरस्टैंड द कॉन्सैप्ट ऑफ द मोल, ठीक है। तो आपां पहलियां दो डेफिनेशनस नूं अज बहुत चंगी तरह स्टडी किया है, क्वेश्चनस नूं अप्लाई किया, ठीक है, भी किस तरह जी डेफिनेशन है क्वेश्चन दे विच अप्लाई होंदी है। सो इसकी प्रैक्टिस जी हैगी आ उहनूं बहुत केयरफुली तो बहुत चंगी तरह करियो, एक कंटीन्यूटी दे विच करियो, ताकि जिहड़ा मोल कॉन्सैप्ट है इहदा क्वेश्चन कदे भी गलत ना होवे। दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर द मास्टर कैडर एग्जाम, ठीक है जी। तो ये अपने कोले अज आपां सिर्फ इन्ना ही करांगे, जिहड़ी थर्ड डेफिनेशन है वो आपां नैक्सट वीडियो दे विच करांगे। तो अज दे लैक्चर दे लई दिस इज़ मोर दैन सफिशिएंट। अगर किसी नूं भी कोई डाउट होगा तो तुसीं बहुत ईजीली इस वीडियो दे विच कमेंट करके पूछ सकते हो, ठीक है राजे। सो इहदे विच जिन्ने भी तरह के अपने कोले डाउट्स ने या जिन्ने भी तरह के क्वेश्चनस ने वो तुसीं मैनूं पुछने ने, ठीक है। या फिर की हुंदा है कि हर तरह का क्वेश्चन जिहड़ा हैगा वो अप्लाई करके देखना है, ठीक है, क्योंकि उहदे विच आपां नूं पता नहीं हुंदा भी पेपर दे विच जिहड़ा हैगा वो किस तरीके दे नाल क्वेश्चन पूछा जाऊगा। बेसिक जिहड़ा हैगा वो बिल्कुल सेम होऊगा, बट क्वेश्चन कई बारी स्टेटमेंट डिफरेंट होने दे नाल आपां कन्फ्यूज हो जाते हैं। इस करके जिन्नी इहदी प्रैक्टिस करोगे उन्ना दैट विल बी गुड फॉर यू। थैंक यू फॉर दैट इज़ फॉर टुडे ओनली।